إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وفي الرواية كل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحز ولا طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. معزز حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سورہ قاف کی تلاوت کرنا جمعہ خطبہ میں مسنون ہے، لیکن اگر یاد نہ ہونے کی وجہ سے یا ارادتاً یاد ہے پھر بھی اگر کوئی سورہ قاف کی تلاوت نہ کرے تو یہ ایسی سنت نہیں ہے جس سے گناہ ہو، یا سنت موقعہ بھی نہیں ہے یہ، یا سنت موقعہ بعض علماء کہتے بھی ہیں لیکن فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. اور محدثین کرام علماء کرام نے جمعہ خطبہ میں سورہ قاف پڑھنے کی جو حکمتیں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ قاف میں چونکہ اللہ نے سابقہ قوم کے ذکر کیے ہیں اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے جس سے دل میں نرمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو حکمت علماء نے بتائی ہیں. اور اگر اس سورہ قاف کو نہ پڑھا جائے تو جو میں نے ابھی سورہ حقہ کی تلاوت کی اس میں بھی تقریباً وہی پوائنٹس ہیں، اقوام سمود قوم عاد کے ذکر ہے، جنت جہنم کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی حساب و کتاب کا ذکر ہے، تو تقریباً مثل ہے دونوں.
इसी मुनासबत से मैंने इसकी तिलावत की है। बहरहाल तो मैंने अभी वही मैंने जो कही है आज पढ़ी है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका तर्जुमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं, ए नबी आप जान लीजिए अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेशक कोई इलाह नहीं है सिवा एक अल्लाह के। तो सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला क्यों अपने नबी से कह रहा है कि आप जान लीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं? क्योंकि अल्लाह अगली जगह कुरान में कहता है कि व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैं यानी कि अल्लाह इलाह एक ही इलाह है, अल्लाह एक इलाह के अलावा कोई इलाह माबूद नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं। इस मुनासबत से इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें भेजा है, ये एक अल्लाह की इबादत के लिए भेजा। एक इस दुनिया जब से दुनिया बनाई अल्लाह ने, तब से 1,24,000 कमो बेश अम्बिया रसूल के सिलसिला अल्लाह ने हमारे रुश्द व हिदायत के लिए सिलसिला जारी किया। इसके आखिरी करीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तमाम अम्बिया की एक ही दावत रही है कि इस सब का एक माबूद एक ही है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे नबियों की एक ही दावत थी, सबका निचोड़ एक ही था, तौहीद थी, और ये दुनिया भी तौहीद से ही कायम है। जब तक दुनिया में तौहीद परस्त हैं, तौहीद वाले हैं, शिर्क के दिफा करने वाले हैं, तब तक की दुनिया की बका है। उलमा ये भी कहते हैं कि दुनिया की बका ही तौहीद की वजह से है। जब तक तौहीद और तौहीद परस्त हैं, ये दुनिया की बका है। जब भी दुनिया के खत्म इख्तिताम पर अल्लाह एक भी मुवहिद नहीं रहेगा, जो भी क़यामत आएगी वो मुशरिकों पर होगी, काफिरों पर होगा। तो ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसी मुवहिदीन में से अल्लाह ने हम सबको भी इसी मुनासबत से जमा किया है। यूँ तो कहने के लिए आज बहुत से मुवहिदीन भी पाए जाते हैं हमारे माशरे में, हम में से बहुत से लोग हैं जो तौहीद का दावा करते हैं, लेकिन तौहीद परस्त नहीं है। बस जबान से अदा कर दिए, दावा कर दिए, लेकिन तौहीद परस्त नहीं है। जिसे को अल्लाह इकबाल ने कहा है कि जबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं। और इसी को अल्लाह इकबाल ने अपनी एक दूसरी शायरी में कहा है कि गला घोट दिया अहले मदारिस ने तेरा, गला घोट दिया अहले मदारिस ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुछ हमारा इल्मिया भी कुछ इसी तरह है कि हम मदरसा हो या मकतब कहीं भी पढ़ें, तौहीद परस्त की हो या मुशरिकों का मदरसा हो, मुशरिक की तो बात ही नहीं करनी। और ना अपने आप पर है कि हम तौहीद परस्त होने के बावजूद भी हमारे जितने भी जामियात हैं, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन रहमल्लाह, कोई चंद मदरसे होंगे जिनमें इल्म में नहीं, जहाँ पर सही मनहज पढ़ाई जाती है, पढ़ाने के पढ़ा भी दी जाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। इसी को अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा है कि कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि मैंने जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें इलाह किसे कहते हैं? इलाह, चूंकि लफ्ज़ अल्लाह जो है, लफ्ज़ अल्लाह अरबी में असल नहीं है, अल्लाह आ गया बाद में। अरबियों के मकूला अरबियों का यहाँ एक कंसेप्ट पाई जाती है कि जिस चीज़ को उनको बोलने में मुश्किल होती है, वो अपने अल्फाज को तगय्युर करके उसको आसान बना देते हैं। तो लफ्ज़ असल इलाह है, लेकिन इलाह को चूंकि इलाह बोलना या इलाह इस बोलना थोड़ा मुश्किल था अरबियों को, इसलिए अलिफ लाम लगा के इजाफे करके उसको अल्लाह बना दिए अरबियों का जो ये है। इसलिए लफ्ज़ असल अल्लाह नहीं इलाह है। और इलाह का मतलब क्या है? इलाह यानी एक अल्लाह की बात करना, इसको उर्दू हिंदी में कह सकते हैं, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा, जिसकी इबादत की जाए। अगर एक अल्फाज में कहा जाए इलाह कौन, तो जिसकी इबादत की जाए, और जिसकी इबादत की जाए वो कौन? वो माबूद। तो वो हमारा माबूद हक़ीक़ी वो एक अल्लाह है, जिसने हमें पैदा किया अपनी बंदगी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क में कहता है अल्लाज़ी खलक़ल मौत लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि बेशक मैंने तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह की इबादत कैसे करनी और क्यों करनी? क्यों करनी तो मालूम है कि अल्लाह की बात फ़र्ज़ है, अल्लाह ने पैदा किस लिए करनी, कैसे करनी, तो रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर करनी। और क्यों करनी? तो अल्लाह की बंदगी के लिए करनी। अब मसला ये है कि सबसे बड़ी इबादत क्या है? तो सबसे बड़ी इबादत न नमाज है, न ज़कात है, न हज, न खम्स है, न इस्लाम के 5 अरकान है, जिसमें पहला तौहीद है। तो सबसे बड़ी इबादत भी तौहीद है। अगर तौहीद नहीं है, उसके अलावा हम रोज़ा रखें, नमाज पढ़े, ज़कात करें, अलगज़ के दुनिया की कोई भी नेकी कर लें, अल्लाह के अंदर अल्लाह कबूल वो नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान मजीद में कि मुशरिक अगर सोना भर के भी अगर सदका कर दें, अगर अपने बचाव के लिए मरने के बाद, तो भी अल्लाह से कबूल नहीं करेगा अगर वो शिर्क की हालत में मरे हों। तो ये मेरी पहली खुतबा ख़त्म हुई, इसके बाद दूसरी खुतबा पढ़ेंगे। हमारे नज़र बलाव अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आक़िबतिल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की इंसानों में से
उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट पर जब हाथ रखी तो क़यामत तक आने वाली तमाम रूहों को अल्लाह ने निकाल दी। उस रूहों में से अल्लाह ने हर कैटेगराइज किया सबको, अंबिया की जमात कौन हो गया, अल्लाह ने मुख्तलिफ किया, सादिकीन की, सालिहीन की, शुहदा की, बदकारों की, फासिक फाजिर की, काफिरों की, किसकी कैसी जमात होगी, अल्लाह ने सबको अलग अलग करके बता दिया कि कौन क्या होगा। सबको अल्लाह ने उसी दिन अलग अलग कर दिया था, जिसमें से उसके बाद अल्लाह ने जिसको जिस शक्ल में दुनिया में भेजना चाहा उसको शक्ल इख्तियार करके अल्लाह ने दुनिया में भेज दी। बहरहाल हम सबको अल्लाह ने आलम अरवाह में ही हम सबसे अल्लाह ने वादा ले लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, जब हमारे अल्लाह ने हमारी रूहें जब पैदा की तो उस वक्त अल्लाह ने हमसे वादा ले लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा था बला, क्यों नहीं, वाई नॉट, हम सब ने इकरार किया था। बावजूद इसके अल्लाह ने दूसरा एहसान अजीम हम पर यह किया कि अल्लाह ने हमसे वादा लेने के बाद भी हम भूल ना जाएं। कुल्लु आदम खत्तार, और इंसान का मतलब ये भूलने वाला, हम भूल ना जाएं, इसलिए अल्लाह ने याद दहाने के लिए 1,24,000 अंबिया भेजी ताकि हमारे रिमाइंडर होता रहे। तब जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस किया तो उनसे भी मुखातिब करके कहा, आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए अल्लाह ने कहा कि जब मैं आप दुनिया में जाने के बाद जब आपके पास मेरी तरफ से कोई वही कोई रसूल आए तो आपको उनकी बातों की इत्तबा करना है, तो आप हिदायत याफ्ता होंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आज मौजू चुनी है वो तौहीद है। और सबसे पहले यही बता दूं कि आज से पहले मुझे टॉकिंग पावर तो अल्लाह ने मुझे दी है इंडिविजुअल तौर पे, बट खुतबा देना एक कैफियत कुछ मुख्तलिफ होती है। तो आवाज़ में लड़खड़ाहट भी और पैर में लग्जिश भी थोड़ी सी है, क्योंकि खुतबा देना कभी दिया नहीं मैंने। वैसे ओरल टॉकिंग है, बात कर ले 50 लोगों के सामने में अच्छे खासी बात कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट एक मेंबर पे आके साइकोलॉजिकल कुछ अलग हो जाती है, तो लड़खड़ाहट जबान में है। बहरहाल कुछ भी अगर मेरी जबान से कुछ गलत निकल जाए तो आप लोग यहीं पे इस्लाह कर दीजिए, एक अदब का तकाज़ा भी यही है। और नहीं तो इंडिविजुअल भी आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं कुछ मैंने गलत कही हो तो। अल्लाह सबको जज़ाए खैर से नवाजे। तो सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला के एक कलाम को मैं कोट करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला कर दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर दिया है कि बेशक अल्लाह मुशरिक को बख्शेगा नहीं, उसके अलावा जिसे चाहे, लफ्ज़ जिसे का कुरान में मौजूद, जिसे चाहे बख्श दे। तो मुशरिक कौन? वैसे तो देखा जाए तो इस दौर में अक्सरियत ईमान अल्लाह के बकौल ईमान लाने के बावजूद अक्सर मुशरिक हैं, बहुत कम ही है जो अल्लाह का शुक्रगुजार हैं, नेक बंदे हैं, वन अक्सरियत ईमान के दावा तो करते हैं लेकिन मुशरिक हैं। तो अल्लाह ने मुशरिक के ऊपर जन्नत हराम कर दिया। अल्लाह ने कई जगह कुरान में कहा है कि वो मैंने मुशरिक के ऊपर जन्नत को हराम कर दी है। तो मुशरिक कौन? शिर्क करने वाला। और शिर्क क्या? तो आज की जो मौजूदा दौर की शिर्क है वो मुशरिकीन मक्का के ज़माने में जो शिर्क थी उससे भी बदतरीन शिर्क की शक्ल आज इख्तियार कर चुकी है। मुशरिकीन मक्का भी इतना बड़ा, इतना कभी किस्म के शिर्क नहीं करते थे जितना आज के हम नाम नेहाद कलमा गो मुशरिक शिर्क करते हैं। और अगर बलफाजिल अगर कहा जाए तो हम नाम नेहाद अहले हदीस भी शिर्क तो नहीं करते लेकिन तौहीद पर उतने खरे उतरते भी नहीं है। बात को घुमा फिरा के बात करना, अपने मन की बात करना, बिदअत, चूंकि बिदअतें खुल्लम खुल्ला हम नहीं करते लेकिन बिदअत की बहुत सी इक़साम हम अहले हदीसों में पाई जाती है। अगर शिर्क से बहुत हद तक हम इज्तनाब करते हैं लेकिन बिदअत में बहुत हद तक मुब्तला है किसी न किसी जरिए से। तो ये शिर्क जो जन्म है, शिर्क की जन्म ही होती है बिदअत से, शिर्क की जन्म ही होती है, शिर्क की पैदाइश ही होती है गुलू से, मोहब्बत से। आप शिर्क की इब्तिदा कब हुई? नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से। उनमें जो 5 बुजुर्ग थे जो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया वो पांचों वाकई अल्लाह के बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उनकी वफात हो गई तो उनके मोहब्बत के नाम पर शैतान ने वर्गलाते उनके अगले दूसरे तीसरे जनरेशन को ला के बुत परस्ती की इब्तिदा कर दिया। तो आज भी अगर हम देख लें तो शिर्क की इब्तिदा ऐसे ही होती है कि आज हमारे कोई बुजुर्ग मर गए, सपोज मान लेते हैं किसी मसलक की हो, वो अच्छे थे, नेक थे, वली अल्लाह थे, बुजुर्ग थे। अगर बरेलवी के इत्तिबा से कह ले तो ख्वाजा गरीब नवाज हो या मुइनुद्दीन चिश्ती हो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, वो वाकई अल्लाह वाले थे लेकिन उन्होंने शिर्क की दावत कभी नहीं दी। अभी भी मैं अपने दोस्तों में बात करता हूँ तो कहता हूँ जो पिराने पीर के जो लोग पूजा करते हैं, 11वें शरीफ करते हैं, तो क्या पिराने पीर यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी अपनी दावत दी कि मुझे पैरवी करो? बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी तौहीद फैलाई है उतना उसका 10% भी अगर बरेलवी हजरात या मुशरिक अगर अमल कर ले तो यकीनन पक्का मुवहिद बन जाए। उनकी किताब एक बहुत मारूफ है, कई किताबों में से एक बुनियतुत तालिबीन, उनका मुताला करें और आमीन शिर्क, बिदअत, आमीन बिल ज़हर, रफ़ुल यदैन, तौहीद परस्त से कौन जलते हैं, आमीन से कौन जलता है, तौहीद शिर्क क्या है, उस पर मुकम्मल उन्होंने पूरा खाका उन्होंने खींचा उस पर। लेकिन उसी किताब का हवाला देकर किसी बरेलवी भाई को कहा जाए जो आपके ही उलमा, वो तो है उस अहले सुन्नत के उलमा है वो, लेकिन बक़ौल बरेलवी उन्हीं के उलमा है, उनकी किताबों का हवाला देकर भी कहा जाए कि ये गलत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने इन चीज़ों से मना किया है, वो इससे बेजार हैं, वो तो मानने को तैयार नहीं, तावील करने लगते हैं, गुलू करने लगते हैं।
अभी भी मैं 2 दिन पहले मेरे एक साथी से बात हुई, वो शिर्क या शायरी लगाए हुए थे अपने स्टेटस पर, चूंकि आलिम है, बरेलवियों के बड़े आलिम हैं। उन्हें मैंने कहा हजरत आप ये लगाए हुए क्या शिर्क नहीं है? वो आजम से मदद मांगने के मुतालिक शिर्क लगाए हुए थे, तो कहते नहीं ये शिर्क नहीं है, ये ताजीम है। ये मैंने कहा ताजीम ही से तो शिर्क की इब्तिदा होती है, ताजीम ही। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि शिर्क ऐसी कबीह गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में या रसूलुल्लाह ने पूरी हदीस में कभी एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने कहा हो या रसूलुल्लाह ने कहा हो कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह माफ कर देगा, यानी कि अल्लाह ताला जन्नत हराम कर दी है सिवाय एक गुनाह के। कुरान या हदीस भरी पड़ी है बेशुमार गुनाहों पे, फला कबीरा गुनाह करने पर जहन्नम दायमी है, दायमी है, दायमी है, ऐसा अल्लाह ने कहा है कबीरा गुनाह पर, लेकिन उस तरह दायमी नहीं है जैसा दायमी शिर्क पे है। शिर्क पे मुहर लगी हुई है कि शिर्क के हालत में मरने वाले के लिए अल्लाह ने मुशरिकों पर अल्लाह ने जहन्नम हराम कर दी है। तो शिर्क की यह शक्ल जो इस दौर में हम इख्तियार कर चुके हैं, ये बदतरीन शक्ल है। शिर्क की इब्तिदा के मुतालिक मैं कहूँ तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या कहा सूरह मायदा में, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहुल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि बेशक अल्लाह ताला ने मुशरिकों पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। आज जो हम मदद मांगते हैं या गौसे मदद या फिर जो भी बरल बेहसत कहते हैं, उसका क्या है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क। ये नहीं फिर शिर्क क्या है? ये ऐसी कभी शिर्क है कि इसमें मुब्तला होने वाला इंसान जन्नत में जा ही नहीं सकता। जिस तरह हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, इसी तरह अगर शिर्क करने वाला शिर्क की हालत में तौबा किए बगैर मर गया तो उसके ऊपर जन्नत हराम है। और जिस तरह हम तेरी ही इबादत करते हैं उसी तरह मुशरिक भी उसी तरह जहन्नम ही है, उसके लिए जहन्नम के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए नस्ताईन किराम हमें शिर्क जैसे कभी गुनाह से बचने की तौफीक भी मांगनी चाहिए और इससे और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह इससे बचाए, क्योंकि शिर्क ही एक ऐसी नाकाबिल माफी है कि जिस पर जन्नत दायमी है अगर तौबा किए बगैर मर गए तो। उसके अलावा कोई भी कबीरा गुनाह करे, बेशुमार कबीरा, इमाम ज़हबी ने अपनी किताब कबायर बोल के लिखा, उसमें कई उन्होंने जिक्र की कबीरा गुनाह की। वो सारी कबीरा गुनाह भी इंसान बेवक्त सारी कबीरा गुनाह कर ले, उसके बाद भी मर जाए तौबा किए बगैर, तो भी चांस है अल्लाह अपनी रहमत से चाहे तो बख्श दे। लेकिन कोई इंसान पूरी दुनिया के हर नेकी कर ले लेकिन एक शिर्क में अगर मुब्तला है, उसी हालत में तौबा किए बगैर मर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दायमी जहन्नम देगा। जैसा कि आप सूरह ज़ुमर की आयत है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क्या है इसमें अल्लाह तबारक व तआला कितने मोहब्बत भरे अंदाज में अपने बंदों को मुखातिब करके कह रहे हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदे जिन्होंने अपने नफ्स पे जुल्म कर लिया है। जुल्म से मुराद क्या है? जुल्म से हर मुराद लिया जा सकता है, हर कबीरा गुनाह ले सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। जैसा कि सूरह लुक़मान में है, सूरह लुक़मान ने क्या कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे को शिर्क मत करना। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। हाफिज़ इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि जुल्म से मुराद यही एक ऐसी गुनाह है जो नाक़ाबिल माफ़ी है और यही एक है जिस पे जन्नत हराम कर दी गई है। इसलिए इस गुनाह से इंसान को हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करना चाहिए और बचना ही चाहिए। अगर इससे नहीं बचा तो फिर वो कामयाब नहीं है। तो है कुरान में फ़ीहा फौज़ुन कबीर, मुशरिक के लिए फ़ीहा फौज़ुन कबीर नहीं है। मुशरिक के अलावा कोई भी है चांसेस है कि अल्लाह उसको फ़ीहा फौज़ुन कबीर में शामिल कर दे, लेकिन इसमें अगर कोई शामिल हो गया तो नहीं होगा। ये जो मैंने आयत तिलावत की, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू इला आखिर, इस आयत के पस मंज़र क्या है? सहाबा किराम भी एक जमात में आए रसूलुल्लाह के पास और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दावत सही है, आपकी दावत पर हम लब्बैक कहना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, आपकी दावत पे हम लब्बैक कहना चाहते हैं, लेकिन है ये कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ज़ना की कसरत से मैंने की है, कत्ल कसरत से की है, गुनाह भरे पड़े हैं, अगर मैं ईमान ले आता हूँ तो मेरा क्या बनेगा? तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल की थी, ए मेरे बंदे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। तो अल्लाह की रहमत से, वैसे भी अल्लाह की रहमत से नाउमीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। तो कुफ्र यानी कि इंसान को इस तरह से बचना चाहिए। हालांकि उस कुफ्र नहीं है कि इंसान दर इस्लाम से खारिज हो गया, बट कुफ्र है ये भी है कि अल्लाह से नाउमीद हो गए। इब्लीस अल्लाह से नाउमीद हुआ तो अल्लाह ने उसको लअन कर दिया। उसी वक्त गलती दोनों से हुई, आदम अलैहिस्सलाम से भी इब्लीस से भी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चंद कलमा सिखाया, आदम अलैहिस्सलाम ने मांगे, अल्लाह ने बख्श दिया। इब्लीस ने अकर गया, अल्लाह ने उसको लअन बना दिया, क़यामत तक के इनकार दिया। तो इसीलिए हमें शिर्क जैसे कबीह गुनाह से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करना चाहिए। तौहीद की जिंदगी पर असरात क्या होते हैं? तौहीद इंसान को इंसान की बंदगी से निकाल कर रब की बंदगी की तरफ ले जाता है। शिर्क इंसान को रब की बंदगी से निकाल के मुशरिक या गैर माबूद की बंदगी की तरफ, गैरुल्लाह की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, जिस पर सीधा फर्क, इसे फुरकान कहते हैं। ये जन्नती जहन्नमी का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। अगर शिर्क में मुबतला है खुल्लम खुल्ला, अगर कबीरा शिर्क में, तो जहन्नम की गारंटी है। फिर लोग कहते हैं कि कैसे किसी को कह दिया जाए कि फला मुशरिक है वो जहन्नमी है, तो लोग कहते हैं कैसे कह सकते हो? हाँ,
ایک गुनाह पर हम कह सकते हैं, हाँ कोई नमाज ना पढ़े, चोरी करे, डकैती करे, जना करे, शराब पिए, इस पे कोई नहीं कह सकता कि तुम जहन्नमी हो। लेकिन खुल्लन खुल्ला शिर्क करने वाला शिर्क की हालत में है, उस पर शिर्क वाज़िह दिख रही है, कबीरा शिर्क, कबीरा गुनाह, तो फिर उसको मुहर लग चुकी है कि वो जहन्नमी है। अगर इसी पे मर गया, इल्ला ये कि तौबा कर ले नज़ा के आलम में आने से पहले, तो फिर ये माफ़ है, वरना इसकी माफ़ी नहीं है। तो तौहीद इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल दिलाती है, और शिर्क इंसान को अल्लाह से तवक्कुल निकाल के गैरुल्लाह पर तवक्कुल दिलाती है। यही वजह है कि आज लोग डायरेक्ट अल्लाह से मांगने के बजाय गैरुल्लाह की नज़र न्याज करते हैं, उसके जरिए से उसके वसीला बनाते हैं, जबकि अल्लाह ने वसीले के मुतालिक भी कुरान में मुतअद्दिद जगह फरमाया है कि वसीले के जायज़ जो सूरत है वो इख्तियार करो। जैसा कि सूरह कहफ में भी अल्लाह ने इसका जिक्र किया है, 3 असहाब कहफ का जिक्र किया, तीनों ने अपने अपने वसीला, अपने अपने नेक अमाल को वसीला बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पत्थर हटा दिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। इस तरह तो शिर्क की ये इब्तदा, ये इंतहा है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा जाए। हम लोग दिन में एटलीस्ट 17 दफा 17 टाइम्स कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन अमल उसके बरखिलाफ है। इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन रहमल्लाह, कोई ऐसा शख्स हो जो अमल भी करते हैं लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई के शिकार हैं। वो जो सहाबा किराम के दौर थे, कलील तादाद कसीर पर गालिब आए, क्यों? क्योंकि अल्लाह का वादा उनके साथ था, इन तुम आलौना आयत है कि तुम्हें गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। वो लोग मोमिनीन की जमात थी, इसलिए 313 हज़ारों पे गालिब थे, 3,000 2 लाख पे गालिब थे जंग मोता में, 3,000 सहाबा थे, 2 लाख मुशरिकीन मक्का थे, फिर अल्लाह ने फतह दी। वजह क्या थी? वो अपने अल्लाह के कौल पे बिल्कुल ईमान रखने वाले थे, रसूलुल्लाह के बातों को सदाकत मानते हुए उस पर अमल करने वाले थे, इसलिए अल्लाह ने कसीर तादाद को कलील तादाद को कसीर पे फौकियत दी। अगर आज हम मुसलमान भी इस अमल को करते हैं तो कोई बैठ नहीं कि आज अहले हदीस की तादाद कम है। और अल्लाह ने कहा भी कुरान में कि जो सही अकीदे वाले होंगे, अल्लाह के सही बंदे हैं, तौहीद परस्त हैं, जो हक पर हैं, जो हक जमात है, वो हमेशा कलील ही रहेगी, कसीर नहीं होगी। अगर कसीर का देखा जाए तो आज तो दुनिया में यहूद नसारा की, ईसाइयों की ज्यादा अक्सरियत है। मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो हिंदू है, उनकी होनी चाहिए गलबा, लेकिन नहीं, अल्लाह देगा किसको गलबा? जो मुवहिदीन हो। इसलिए हमको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को तौहीद पे साबित कदम रखे, और जब तक जिंदा रखे तौहीद पे जिंदा रखे, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। और अल्लाह तबारक व तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल इखलास फिल इल्मी वल अमल, अल्लाह हमें इल्म और अमल में इखलास पैदा कर, व हुस्नुल खातिमा, और हुस्न खातिमा अता कर। अगर इंसान को इल्म है और नाफे बख्श इल्म भी है लेकिन उस पर अमल नहीं है तो वो अमल बेकार है, फिर वो इल्म बेकार है। अगर इल्म के साथ अमल नहीं तो वो अमल बेकार है, बस बेकार है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें जो इल्म तूने दिया है उस इल्म को अमल करने वाला बना। और सिर्फ अमल नहीं, अमल तो हम भी कर रहे हैं, हम सब लोग नमाज पढ़ेंगे, लेकिन दिल का मामला अल्लाह के साथ है कि नमाज किसकी कबूल होगी, ये इखलास पे डिपेंड करता है। 10 से लेकर 700 गुना तक हम लोगों को अजर मिलेगी, किसे मालूम कि किसे 10 मिलेगी, किसे 700 मिलेगी, लेकिन हमें अल्लाह देगा जिसे जितना चाहे। तो वो इखलास पे फर्क पड़ता है, इसलिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल इखलास फिल इल्मी वल अमल व हुस्नुल खातिमा। हुस्न खातिमा भी सबसे बड़ी कामयाबी है, हुस्न खातिमा। बहुत से मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं हदीस के, जो शुरू में इस्लाम की बड़ी खिदमतें की, आखिर में उनको कुफ्र पे मौत हुई, शियत पे मौत हुई है, कुफ्र इख्तियार करके मरे हैं। आज उनकी हम किताबें भी पढ़ते हैं, जो मुहद्दिसीन थे, तबलीगियत हैं, आज पढ़ते हैं, लेकिन वो खुद कुफ्र पे मरे। इसी के बरखिलाफ बहुत से ऐसे उलमा गुजरे हैं शिया के भी, जो बड़े बड़े किताबें लिखे थे शिर्क के बारे में, कुफ्र फैलाने के मुतालिक, गलत अक़ायद के मामले में, लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें दीन का काम देना चाहा तो उन्हें तौहीद की दौलत से नवाजी, तो लास्ट में उन्होंने मरने से पहले तौबा की, कुछ किताबें लिखी जो आज हम लोग पढ़ते भी हैं, उनके लिए बख्शिश की जरिया बनेगा इंशाअल्लाह वो। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को जो भी इल्म दे उस पर अमल करने की तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पे जिंदा रखे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिउम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिउम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिउम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। वस्तग़फ़िरुल्लाह वल्लाहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। बस, जज़ाकल्लाह खैर। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهل وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.